student, welcome back in our today's mathematics class. Students, today we are going to start our last exercise of our chapter 8, that is 8.3. So before starting the introduction of this exercise, let me tell you one thing, that in this exercise we'll do two basic concepts. The two concepts we'll do in this exercise, and that concept are very important. Okay, means two types of question. दो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जिनके बेसिस पे विल हैव द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. Okay, so I'm going to divide this exercise into two parts. In one part I'll do the one concept, right? In the second part I'll do the second concept and related to that question as well. So understand both the concept very nicely because both are very important. Okay, so let's start first concept for the introduction. Okay, so very first concept, student, that is ratio into percentage. Means you have to convert the ratio one term into percentage. How? See, suppose you are having 2:5. It means, students, means 2:5 is also a fraction term, right? How? कि कोई भी चीज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है in 2:5 में. ओके, एक बच्चे को उसका 2 पार्ट मिला है और एक को 5 पार्ट्स मिले हैं ऑफ द सेम थिंग, ऑफ दैट होल थिंग. और वो पूरी होल थिंग कितने की है? 5 + 2 7 मींस it is 2/7 and for 5 it is 5/7 means 2 part out of 7 parts and 5 part out of 7. So total number of parts are 7. Such type of question we have done in previous class, right? So now the ratio term we have converted into fraction. Now it's very easy to convert into percentage. Fraction को percentage में convert करने के लिए we'll multiply the given fraction with 100%. Very simple. And afterwards calculation is there as we used to do in every question, right student? So this is first concept, and along with this concept only one more concept, मतलब ये पूरा first part में ही आ रहा है. Okay student, after ratio the second one thing concept which all means including in that concept only is cost. Means student, cost means what? Cost, किसी की कोई भी कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना है, फिर आपको प्रॉफिट क्या हुआ, फिर आपको लॉस क्या हुआ. मींस इन दिस अंडर दिस कॉन्सेप्ट विल डू व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस क्या हुआ, देन प्रॉफिट पर्सन एंड लॉस पर्सन. This concept is very important. Although it's very simple, for this you need to understand what is cost price, what is selling price, and after that this easily you will get. See, for example, this marker. I am a shopkeeper, then I also have to purchase this marker from the another wholesale market या कहीं से भी, तभी तो मैं इसको sell करूँगी ना student. So I am a shopkeeper. I have purchased this marker at cost 10 rupees. So मेरा क्या हो गया, ये cost price for pen. Okay, then I have sell this marker to the customer at 20 rupees. तो मैंने इसको बेचा 20 रुपीज में, वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, सेल किया. अब मैंने 10 में खरीदा था, बेचा मैंने 20 में, व्हाट आई गॉट, प्रॉफिट आई गॉट. ठीक है, सो इट मींस प्रॉफिट. जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, ऑब्वियस है व्हाट यू विल हैव, प्रॉफिट. आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट. एंड अब पूछा जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ, कितना हुआ, जितने हमने खरीदा था और जितने बेचा उनका आपस में माइनस करेंगे. बट माइनस फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, तो ऑब्वियस है सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सो एसपी माइनस सीपी, राइट. ऑन द अदर हैंड, इफ सपोज आई हैव लॉस, मुझे लॉस होगा सपोज, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द फॉर्मूला. लॉस के लिए ऑब्वियस है जो मेरे कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से, है ना. लॉस कब होगा, सपोज मैंने 10 में लिया और 8 में आई विल सेल, तो मुझे लॉस ही हुआ 2 रुपीज का. सो इट मींस मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, सो इट मींस लॉस कितना हुआ, सीपी माइनस एसपी, राइट स्टूडेंट. नाउ प्रॉफिट निकल आया आपका. अब बात आई प्रॉफिट परसेंट की.
मतलब स्टूडेंट जो आपका प्रॉफिट आएगा वो किसी डिजिट किसी नंबर में आएगा. सपोज आई गॉट 20 रुपीज, है ना. ठीक है, 20 रुपीज प्रॉफिट मैंने लिया. अब वो 20 रुपीज का परसेंटेज क्या बना आउट ऑफ 100%, कितना बना या कितने की भी आपने चीज ली होगी वो परसेंटेज में क्या होगा. ठीक है, सो परसेंटेज के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%. हाउ स्टूडेंट, प्रॉफिट परसेंट, मुझे प्रॉफिट हुआ कितना, किसमें, सीपी में. हमेशा प्रॉफिट या लॉस, एक बात याद रखना, हमेशा सीपी पे ही होगा. मैंने जितने में चीज खरीदी, इसी खरीदी चीज पे ही मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अगर मैं इसको ज्यादा बेचूंगी तो मुझे प्रॉफिट होगा. इफ आई सेल इट इन लेस प्राइस तो मुझे लॉस होगा. तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस होता है. तो जब भी कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, डिनोमिनेटर शुड बी सीपी, कॉस्ट प्राइस, एंड न्यूमरेटर इज लॉस है तो लॉस परसेंट है तो लॉस, प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट. एंड परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इनटू 100%. यू नो, किसी भी फ्रैक्शन का अगर परसेंटेज निकालना है वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100%. बेसिक वही रहेगा हर चीज का. ओके, सो दीज आर 4 बेसिक फॉर्मूलाज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, ये ही 4 फॉर्मूलाज हैं. ये 2 फॉर्मूला से आपको नेक्स्ट चीजें निकालनी होगी. सपोज क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट निकालना है तो एसपी और सीपी गिवन होगा. सपोज आपको एसपी निकालना है मींस सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको सीपी और प्रॉफिट गिवन है, राइट. सीपी और प्रॉफिट तो कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली. एसपी निकालना है तो एसपी विल रिमेन हियर ओनली, सीपी विल गो दैट साइड. तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज सीपी प्लस प्रॉफिट, राइट. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी सेम हैंड, इफ आपको एसपी निकालना है और आपको लॉस हुआ है, सपोज लॉस हुआ है, हमेशा ये जरूरी थोड़ी आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है. तो अगर आपको लॉस हुआ है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, तो अब ये एसपी, ये माइनस में है ना एसपी, एसपी को उधर ले जाते हैं. एसपी उधर गया, पॉजिटिव में हो गया. सो एसपी इज इक्वल टू सीपी, यहाँ एज इट इज है. ये लॉस इस साइड आएगा क्योंकि हमें सीपी और लॉस गिवन होगा, तो एसपी नहीं गिवन, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस. एल प्लस का है तो एल माइनस का हो जाएगा, राइट स्टूडेंट. इन्हीं फॉर्मूलाज में से वी गॉट दी 1 2 3 4 5 6, the 6 formulas you need to learn. That's it. Rest the question will be very easy. Got student? So this is all about our introduction about the first concept of exercise 8.3. So let's start the exercise questions. For exercise 8.3 question number 1, tell what is the profit or loss in the following transaction. Means the questions are given to you, you have to tell you got the profit or you got the loss, and then also find profit percent and loss percent. Obvious है, profit निकाले तो profit percent will be very easily we will find out, right. So A part we have gardening shares bought for rupees 250. Bought means CP. CP is given to you 250 and sold at rupees, that is SP, selling price is rupees 325. As you can see, SP is greater than CP, right student? So whenever SP is greater than CP, then we got profit. Obvious है, कोई चीज हम ज्यादा में बेच रहे हैं, कम में परचेज करें तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, राइट. सो प्रॉफिट विल बी SP minus CP. So that is 325 minus 250. So 5 minus 0, 5, 12 minus 5, 7, then 2 minus 2, 0. It means rupees 75 we got the profit, right. Now profit percent. Profit percent would be profit upon CP into 100, क्योंकि हमेशा हमें प्रॉफिट और लॉस CP पे ही होता है, right. So profit is 75, CP is 250 into 100, because percentage निकालना तो 100% से we multiply, right. 0 से 0 cancel, 25 ones are 25, 25 threes are 75. So that is 30%. It means we got
the 30% profit on the gardening shares. Right student? Very simple. So this is A part. Now coming to our D part. B and C part is very simple. This is homework for you student. Right? Now B part is a skirt bought for rupees 250. Bought means CP is 250 and sold at matlab is SP is 150. Now student, as you can see, CP is greater than SP. मतलब या SP is smaller than CP. बात तो एक ही है. किसी चीज को हमने ज्यादा में खरीदा and कम में बेचा. What we got? Loss. Yes, we got loss. So how much loss? CP minus SP. CP is 250 and SP is 150. So that is 0, 0, 100. It means rupees 100 का we got loss. Loss पता लग गया, loss percent easily. So loss percent would be loss 100 का CP 250 पे और 100%. 0 से 0 cancel. 25 ones are 25, 25 fours are 100. Right? 25 fours are 100, then 40. It means we got 40% loss on the skirt. Right student? Very simple question. You need to see what is given and what is asking. Okay? And you have to learn the formulas also. So this is all about our question number 1. A and D part, B, C part you will do by your own. So this is all about question number 1. Now coming to our next question. Now question number 2 we have convert the following ratio into percentage. Very simple student. So let's start A part 3:1. So it means first of all 3 upon 3 plus 1 4. Right? Into 100%. And for the second term that is 1 upon 4 into 100%. Right? First we convert into fraction और fraction को फिर into 100. मैंने दोनों चीज एक ही step में करी. Is any problem? No. So let's cut it down. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 9, 10, 4 fives are 20. Right? So it means 4 ones are 4 and then 25. So it means 25 into 3, 75% and 25 ones are 25. So 3:1 that is 75% and 25%. Very simple student. Now coming to our B part. For fraction first of all write 2 upon 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 upon 10, then 3 upon 10, then 5 upon 10. Ratio means this is in the 2:3:5 out of 10. Right? Now taking the percentage 2 upon 10 into 100%. That is 10 10 cancel, 2 ones are 20%. Next, comma 3 upon 10 into 100%. Very simple student. 0 0 cancel, 30%. And then last and 5 upon 10 ka percentage will be 50%. So the answer is 20, 30 and 50%. Very simple. Now coming to our C part. 1 upon 4 that is 1 upon 5 and 4 upon 5. Now percentage 1 upon 5 into 100%. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 0 that is 20%. And after that 4 upon 5 into 100% that is 5 ones are 5, 5 twos are 10 and 0. So 4 twos are 8 and 0. So that is 80 and 20%. Right student? So this is all about our second question which is very simple. Convert ratio into percentage. तो पहले ratio को fraction में कर लेंगे and after fraction to convert in percentage already we have done a previous exercise. So this is all about question number 2. Now coming to our next question. Now coming to our question number 3. The population of a city decrease. मतलब किसी city की population कम हुई है कितनी from 25,000 to 24,500 मतलब टोटल इतनी थी इससे इतनी हो गई है इतनी डिक्रीज हो गई है ठीक है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज अगेन स्टूडेंट सेम क्वेश्चन परसेंटेज डिक्रीज मतलब
लॉस, इंक्रीज मीन्स प्रॉफिट, है ना। सो स्टूडेंट परसेंटेज डिक्रीज के लिए सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए हाउ मच इट इज डिक्रीज, वैल्यू कितना नंबर, हाउ मच वैल्यू फॉर द डिक्रीज पॉपुलेशन, देन ओनली वी फाइंड फॉर द परसेंटेज, राइट। सो इट मीन्स बेस वही है क्वेश्चन का, लॉस एंड प्रॉफिट वाला, बट वर्डिंग्स आर डिफरेंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल total population, how much total population is there? 25,000. 25,000 से क्या हुआ स्टूडेंट? डिक्रीज हुआ, बट कितना? लेट्स सी, population decreased how much? 25 से स्टूडेंट 24,500. so we'll minus it, तो हमें एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 0 0 10 minus 5 5 4 minus 4 0. So it means 500 population is decrease. Now अब decrease population का percentage. So percentage decrease percentage will be obvious है, कितना decrease हुआ है population, decrease population किस में से कितना decrease हुआ? obvious टोटल, व्हाट इज टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, एंड परसेंटेज है तो इनटू 100. वही चीज लॉस परसेंट, लॉस कितना हुआ? अबाउट टोटल सीपी एंड देन 100%. सी स्टूडेंट, चीज हमेशा वही होती है, मैथ्स इज वेरी सिंपल, बस उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. डिक्रीज पॉपुलेशन 500, टोटल पॉपुलेशन 25,000, 1 2 3 into 100%. So 0 0 cancel, 1 0 with cancel out with 1 0. So 25 ones are 25, 25 twos are 50. It means 2% decrease in the population. That's it. So this is all about our question number 3. Now coming to our question number 4. Now coming to our question number 4 student, Arun bought a car for rupees 3,50,000. He bought one car, इतनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी. The next year the price went up. मतलब हर किसी चीज के स्टूडेंट्स जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट. कि गोल्ड प्राइस ऑल्सो समटाइम इट गोज डाउन, समटाइम इट गोज अप एज पर द मार्केट. ओके, सो इन द सेम मैनर ही बॉट वन कार ऑफ दिस मच प्राइस, देन नेक्स्ट ईयर द मार्केट वेंट अप. तो वेंट अप हुई तो प्राइस भी इंक्रीज हो गया, राइट. So what was the percentage of price increase? As you can see, obviously price increase हुआ है. They are asking percentage कि कितना परसेंट increase हुआ. Again वही बात, price increase का percentage निकालने के लिए we have to find out the value for increase one term. कि increase हुआ कितना value. Then only for that value we will take out the percentage, right? It means first of all he bought a car for rupees 3,50,000. Fine. Then amount increased next year. We just write down little bit, means you can say जिससे हमें चीज clear हो, that's it. Amount increased. ठीक है. कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई स्टूडेंट? 3,70,000 से किससे? 3,50,000, क्योंकि हमें वैल्यू भी तो बताना है कितनी इंक्रीज हुई है ना. सो अमाउंट इंक्रीज दैट इज 0 0 0 0 7 minus, so 0 0 0 0 7 minus 2 3 minus 3 0. It means 20,000 amount is increase rupees, right student. अब इतना इंक्रीज हो गया, अब इसी के लिए हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज. सो परसेंटेज फॉर अमाउंट इंक्रीज्ड इज इक्वल्स टू कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई स्टूडेंट? 20,000 आउट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट. व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट? 3,50,000. अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100%, राइट. नाउ we will solve the equation. 0 से 0 cancel, 0 से 0,
This 2 0 will cancel with 2 zeros. Now we have this term. So 5, 5 7s are 35, 5 4s are 20 and 0. So we got 400 upon 7. Now, but we want the percentage, exact value. So we'll divide it, right? So divide it, 7 5s are 35, 7s are, then 0.7 1 the 7, up to so on it will. But decimal के बाद one term तक it is fine student. So the percentage is 57.1 approximately. Okay, so how much percentage is increased? This much. As you can see, question base वही है, but change कर दिया है उसका mode of the question. That's it. But you need to understand question को पूछा क्या है. Right student? So very simple question. This is all about question number 4. Now coming to our next question. To our question number 5. I buy a TV for rupees 10,000. I bought a TV. Cost कितनी है? इतनी. मतलब CP is given to you. And I sell at a profit of 20%. और मैंने उसे सेल कर दिया 20% के प्रॉफिट पे. So how much money do I get for it? स्टूडेंट जब भी ऐसे क्वेश्चन आए डोंट बी गेट पैनिक. ध्यान से समझो क्या है कि मैंने एक पेन लिया और इसको मैंने 10% पे बेच दिया. ठीक है, अब बताओ मुझे कितने पैसे मिलेंगे. पहले क्वेश्चंस कैसे थे कि माय कॉस्ट प्राइस इज दिस, मैंने बेचा 100 रुपीज, मैंने बेचा 200 में, व्हाट आई हैव प्रॉफिट. अब उल्टा है, प्रॉफिट गिवन है और कितने मुझे मिलेंगे. मिलेंगे मींस व्हाट आई विल गेट मींस सेलिंग, है ना, कि ऑब्वियस है 20% पे मैंने बेचा, इट मींस सेलिंग प्राइस. कितना टोटल प्राइस मुझे मिलेगा. सो इसमें ये समझना है. सो इट मींस सेलिंग प्राइस आपको निकालना है. सो सेलिंग प्राइस क्या होगा? CP प्लस प्रॉफिट. हाउ? सी स्टूडेंट्स हियर व्हाट आई टोल्ड, एक फॉर्मूला लर्न किया, इजीली यू विल गेट प्रॉफिट. कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP. अब आपको पता है कि एक टीवी पे आपको प्रॉफिट इतना मिला हुआ है, CP पता है, तो पैसे कितने मिलेंगे? SP we don't know. So SP will remain here only. CP वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. Right student? Now CP we know. Profit हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट से, राइट? जैसे एक प्रॉफिट की वैल्यू से हम प्रॉफिट परसेंट निकालते थे, अब प्रॉफिट परसेंट से हम उसकी वैल्यू निकालेंगे. वेरी सिंपल. हाउ? देखो, we know CP कितना है, कॉस्ट प्राइस फॉर टीवी इज 10,000. अब मुझे इस टीवी पे प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट? 20%. 20% किस पे? CP पे. सो 20% ऑफ 10,000, मतलब इस टीवी पे मुझे 20% प्रॉफिट हुआ है. सो हाउ मच टोटल? You know how to solve such type of term? 20% value is 1 upon 100 into 10,000. So 1 0 से 1 0, both 0 will cancel. Now multiply it. 2 1s are 2, 1 2 3, 3 zeros. It means I got the profit 2,000. 10,000 का 20% is 2,000, मतलब मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ. अगर मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपीज का मैंने लिया था, 2,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ, टोटल कितने पैसे मिलेंगे? 10 plus 2, that is 12,000. Getting my point student? So that is SP is equals to CP plus profit. CP is 10,000, प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का. So that is 12,000 का I will get. So how much money do I get for it? I will get 12,000 money, या rupees 12,000 for the TV. Got student? क्वेश्चन का फॉर्म वही है, यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, पहले हम प्रॉफिट निकालते थे, SP गिवन होता था, अब प्रॉफिट गिवन है, SP निकालेंगे. राइट स्टूडेंट? सो वेरी सिंपल. प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन की फॉर्म किस फॉर्म में है, राइट? फॉर्मूले, जस्ट दीज फॉर्मूलेज ओनली ऑलवेज विल यूज. प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का, लॉस हो रहा है तो लॉस का. दैट्स इट. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6. जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन. सेल्स मतलब
एसपी आपको गिवन है। एसपी कितना है स्टूडेंट? ₹13,500, राइट। Juhi sells a washing machine ₹13,500. She losses 20%. मुझे उसे लॉस हुआ, कितना स्टूडेंट? 20%. अब लॉस 20% ऑफ नो एसपी। हमेशा व्हाट आई टोल्ड, हमेशा लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे, नॉट एसपी। गॉट इट स्टूडेंट? ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। चाहे हमने एसपी लिख दिया है, एसपी इज सेलिंग प्राइस, लॉस हुआ है 20%, किस पे होगा? ऑब्वियस है, जितने खरीदा है। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे, राइट। नेक्स्ट लाइन इज इन द बार्गेनिंग या व्हाटएवर, वर्ड्स पे मत जाओ, जो गिवन है उसको ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज व्हाट वाज द प्राइस एट व्हिच शी बॉट इट। क्या प्राइस पे उसने खरीदा था? मतलब हमें सीपी निकालना है। अब हमें सीपी नहीं पता, सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट फर्स्ट लाइन, लेट सीपी इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे लिखोगे क्योंकि सीपी हमें नहीं पता। सो लेट सीपी इज एक्स एंड एसपी बेचा इतने पे, लॉस कितना हुआ? 20% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स सीपी पे ही हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है, राइट। अब स्टूडेंट हमें सीपी निकालना है, तो वही फॉर्मूला लास्ट पे क्या था? एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, यही था। अब हमें प्रॉफिट की जगह क्या हुआ है? लॉस, तो एसपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। लॉस हुआ तो ऑब्वियस है वी विल डू सबट्रैक्शन, राइट स्टूडेंट। ये फॉर्मूलाज जो हैं यू हैव टू लर्न, राइट। तो अब हमें लॉस हुआ तो ऑब्वियस है वी विल माइनस। नाउ सी 20% ऑफ x, दिस sp we know, लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट से, सो 20% ऑफ मतलब 100 into x, 0 0 cancel, 2 1s are 2, 2 5s are 10, it means x upon 5। लॉस कितना आया? x upon 5। So let's start. Since we know SP कितना है स्टूडेंट? गिवन है 13,500। CP कितना है स्टूडेंट? कॉस्ट प्राइस x, and then loss is x upon 5, right? Now simply इक्वेशन बन गई, अब इसे सॉल्व कीजिए। 13,500 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, हमेशा प्लस माइनस होता है तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। सो 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 5 1 5, 5x माइनस x, राइट। सो 13,500, 5 minus 1, 4x upon 5, right student? 4x, 5x minus 1x, that is 4x. Now x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने ऑलरेडी किया है, फाइंड आउट द वेरिएबल टर्म, ठीक है। सो 13,500, x will remain here only, 4 upon 5 उधर जाएगा, 5 डिनोमिनेटर है तो मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, राइट स्टूडेंट। सो नेक्स्ट 4 1s are 4, 4 3s are 12, 13, and then 4 3s are 12, 13 14 15, 28, 4 7s are 28, 29 32, 4 5s are 20. So that is 3375 into 5. 3375 into 5. So we got is equals to x, and we multiply, we got 16,875 rupees. It means our cost price is therefore CP is equals to rupees 16,875, 16,875. स्टूडेंट आपने सोचा होगा हाउ मच लेंदी क्वेश्चन, लेंदी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। नाउ यू इन क्लास 7 तो आपका कैलकुलेशन का लेवल भी थोड़ा इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है। बट द थिंग इज क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में हमें सीपी था प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस निकालना था, इस फॉर्मूले से प्रॉफिट था तो प्लस पी। अब सीपी नहीं है, एसपी है, लॉस है, चीज वही है,
प्रॉफिट होगा तो प्लस पी और लॉस होगा तो माइनस एल। ठीक है, सो आफ्टर दैट यू जस्ट फाइंड इट आउट। हमेशा लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है। इन सच अ मैनर दैट वी पुट द फॉर्मूला थिंग्स इनटू द फॉर्मूला, उसके बाद जस्ट सॉल्यूशन है, नथिंग एल्स। ओके स्टूडेंट, so this is although a new topic for you in this class, तो थोड़ा सा आपको complicated लगेगा, but you need to do the practice. That is why I'm just doing in two part this exercise. So that's all for today's class in question number 6. For next class we will do the further questions. Right student? You just need to learn the formula. Profit percent, loss percent. You have to learn student। और एक और है SP is equals to CP plus profit। ये फॉर्मूला हमारे यहाँ से निकलते हैं हमेशा। ठीक है, that's all for today's class. Learn the formula student, then only you will able to do the question. So practice these questions very nicely. Okay, so till then thank you so much for watching student. Practice your questions very nicely. Bye bye students.